Hi students, this is the second and last part of our 13th chapter, Great Leaders. In this chapter, we already learned about Abraham Lincoln and Mahatma Gandhi. And today we are going to learn about Socrates and Nelson Mandela. Let's start with Socrates. I am not going to alter my conduct even if I have to die 100 deaths. मुझे अपना आचरण और बिहेवियर बदलना नहीं है, भले ही मुझे 100 बार मरना पड़े. These are the words of Socrates, who was a great philosopher and teacher. He was born in Athens, capital of Greece, in 469 BC, that is about 2500 years ago. ये सोक्रेटिस का शब्द है जो एक महान दार्शनिक है और शिक्षक थे. एंड ही वॉज बोर्न इन एथेंस, कैपिटल ऑफ ग्रीस, इन 469 BC. इन्होंने जन्म हुआ एथेंस में, ये ग्रीस का कैपिटल है, इन द ईयर 469 BC, बिफोर क्राइस्ट 469, एंड दैट इज 2500 years पहले. Socrates was an outspoken person who always spoke the truth. सोक्रेटिस एक मुखर व्यक्ति थे जो हमेशा सच बोलते थे. He never obeyed the wrong orders of the authorities, who tried their best to crush his power and influence among the Greeks, but failed as he always stood for the truth. उन्होंने कभी भी अधिकारियों के गलत आदेशों का पालन नहीं किया. जिन्होंने अपनी शक्ति और प्रभाव को गौरक्षक यानी ग्रीक के बीच कुचलने की पूरी कोशिश की, लेकिन असफल रहे क्योंकि वे हमेशा सच्चाई के लिए खड़े रहे. He believed that one can get true knowledge through right thinking and proper reasoning. उनका मानना था कि व्यक्ति सही सोच और उचित तर्क के माध्यम से इसे सही ज्ञान प्राप्त कर सकता है. He encouraged people to question the authorities and accept only the right things. He encouraged people to question the authorities. उन्होंने लोगों को अधिकारियों पर सवाल उठाने और accept only the right things, केवल सही चीज़ों को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया. Authorities did not like it as his fame spread far and wide. अधिकारियों को यह पसंद नहीं आया क्योंकि उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी. He was then told by the authorities to change his views. उसके बाद अधिकारियों द्वारा उनके विचार बदलने के लिए कहा गया. As he was refused, जैसा कि उन्होंने इनकार किया, refuse किया था कि he was charged with misguiding and spoiling the young generation. उन पर यंग जनरेशन को बिगड़ने का आरोप लगाया गया था. He was put on trial and Socrates himself pleaded his case. उसे मुकदमा में डाल दिया गया और सोक्रेटिस ने खुद ही अपना मुकदमा चला दिया. His followers requested Socrates to leave the country and save his life. उनके अनुयायियों ने सोक्रेटिस से देश छोड़ने और अपनी जान बचाने का अनुरोध किया. And Socrates refused to leave the country or to change his views either. Socrates ने देश छोड़ना या अपने विचारों को बदलने से इनकार किया. The authorities then found him guilty of misconduct. He was punished and asked to drink a cup of poison or change his conduct to avoid death, which he refused. उसे दंडित किया गया और मौत से बचने के लिए एक कप जहर पीने या उसके आचरण को बदलने के लिए कहा गया, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया. Finally, he drank the poison, died and became immortal. अंत में उसने जहर पी लिया, मर गया और अमर हो गया. Plato, the great philosopher, was one of his students. Great philosopher Plato इनका एक स्टूडेंट था. Plato tried to complete the incomplete task of Socrates. प्लेटो ने सोक्रेटिस के इनकम्प्लीट टास्क को पूरा करने की कोशिश की. पीपल्स ऑफ सोक्रेटिस प्रीच्ड हिज टीचिंग्स लेटर. सोक्रेटिस के विद्यार्थियों ने बाद में इनकी शिक्षाओं का प्रचार किया. देन नेल्सन मंडेला.
Dr. Nelson Mandela was born on July 18, 1918 in South Africa. नेल्सन मंडेला का बर्थ हुआ साउथ अफ्रीका में 1918 जुलाई 18 में. He completed his school education at the Methodist Secondary School. इन्होंने इनका पढ़ाई सारे मेथोडिस्ट सेकेंडरी स्कूल में किया. There was a majority of blacks in South Africa, but they did not have the right to vote. जहाँ साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा ब्लैक पीपल था, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था. The white people who were in minority governed the country. White people बहुत कम थे, फिर भी वो देश पर शासन करते थे. There was an absolute discrimination against the black as they were uneducated. Uneducated या अशिक्षित होने के कारण ब्लैक पीपल के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया, भेदभाव किया वाइट पीपल. There was an absolute discrimination against the black as they were uneducated. Being a black, Nelson Mandela also suffered the insults. काले होने के कारण नेल्सन मंडेला को अपमान भी सहना पड़ा. So he fought against this discrimination, which is called racial discrimination or apartheid. इसलिए उन्होंने इस भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसे वर्णभेद या रंगभेद कहा जाता है. नेल्सन मंडेला फाउंडेड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC. नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की. द एम ऑफ ANC वाज टू लिबरेट साउथ अफ्रीका फ्रॉम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से अफ्रीका को मुक्त करना था ANC का उद्देश्य. Many protests and meetings were organized. Mandela was put in prison in 1964. He spent 26 years in jail. ANC was banned. बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हो गया. सबसे लास्ट में नेल्सन मंडेला को प्रिसन में डाला. 26 ईयर तक वो प्रिसन में था. सबसे लास्ट में ANC पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. The followers of Nelson Mandela continued their agitation. The followers of Nelson Mandela continued their agitation. नेल्सन मंडेला के फॉलोवर्स ने अपना आंदोलन जारी रखा. In 1992, a referendum was conducted to find out the people's verdict on apartheid. रंगभेद पर लोगों के फैसले का पता लगाने के लिए 1992 में एक जनमत संग्रह कराया गया था. People voted against racial discrimination. उन्होंने लोगों ने जातीय भेदभाव के खिलाफ मतदान किया. At that time, FWD Clark was the president of South Africa. साउथ अफ्रीका की प्रेसिडेंट उसी टाइम FWD Clark था. He lifted the ban of ANC and ordered the रिलीज ऑफ नेल्सन मंडेला. उन्होंने ANC का प्रतिबंध हटा दिया और नेल्सन मंडेला की रिहाई का मतलब रिलीज का आदेश दिया. जनरल इलेक्शंस वेर हेल्ड इन April 94 in which ANC won. Finally, Nelson Mandela became the president of South Africa. सबसे लास्ट में 1994 में जनरल इलेक्शन हुआ, इसमें ANC जीत गया. सो फाइनली नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बन गया साउथ अफ्रीका की. Thus, real democracy was established in South Africa, which is also called a rainbow nation. इस प्रकार वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना साउथ अफ्रीका में हुई, जिसे रेनबो नेशन इंद्रधनुष राष्ट्र भी कहा जाता है. डॉक्टर नेल्सन मंडेला वाज ऑनर्ड विद द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1993. 1993 में पीस का नोबेल प्राइज नेल्सन मंडेला को दिया, जिसे ऑनर किया नेल्सन मंडेला को. एंड हमारा इंडिया भी ऑनर कर दिया नेल्सन मंडेला को, भारत रत्न दिया 1990 को. एंड हिज ऑटोबायोग्राफी इज द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ऑटोबायोग्राफी मीन्स द सेल्फ रिटर्न अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ वन सेल्फ. हिंदी में आत्मकथा कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर. थैंक यू.